नमस्कार, न्यूज नेशन के इस खास कार्यक्रम विजय चौक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। विजय चौक पर आज जितनी गर्मी दिखाई दे रही है उससे कहीं ज्यादा गर्मी मेरे बाईं ओर संसद भवन में, संसद परिसर में और संसद के भीतर दिखाई दी, और वो भी न्यूज नेशन के एक खास स्टिंग ऑपरेशन जॉक को लेकर। ऑपरेशन जॉक को लेकर आज दिन भर चर्चा संसद के बाहर, संसद के भीतर होती रही, और जिसमें बताया गया था कि डॉक्टरों और पैथोलॉजिकल लैब्स के बीच में किस तरह का गठजोड़ बना हुआ है। इसमें मैं आपको इस बात का जानकारी देना चाहता हूं कि शायद पहली बार हुआ होगा संसदीय इतिहास में कि ये मेरे पास स्टेटमेंट है कि किसी न्यूज चैनल का नाम लेकर मंत्री जी ने कोई स्टेटमेंट दिया हो। ये स्टेटमेंट है ऑपरेशन जॉक को लेकर, जिसमें डॉक्टर हर्षवर्धन ने स्टेटमेंट दिया, और पहली लाइन न्यूज नेशन को लेकर जिक्र किया गया है कि ऑपरेशन जॉक का जो न्यूज नेशन ने किया है वो बहुत ही गंभीर मामला है। मैं यहाँ पर जिक्र कर दूं आपको कि मेरी बात डॉक्टर हर्षवर्धन से पहले भी हुई थी। उन्होंने इसमें इनिशिएट किया, वो खुद डॉक्टर है, उन्होंने गंभीरता से इस मामले को लिया, स्पीकर से वक्त लिया, और 4 बजे ये पूरे 4 पेज का स्टेटमेंट है जिसमें उन्होंने मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का जिक्र किया कि किस तरह से कोर्ट का जो है उल्लंघन किया जा रहा है, आचार संहिता का उल्लंघन किया जा रहा है। उन्होंने सेक्रेटरी हेल्थ को कहा है कि वो न्यूज नेशन के साथ सीडी लेकर जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करें। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि आज संसद में 4 बजे हर्षवर्धन साहब ने, जो डॉक्टर हर्षवर्धन है स्वास्थ्य मंत्री, उन्होंने क्या कहा। Sir, I wish to make a statement on the floor of the House regarding Doctor Pathological Laboratory / Diagnostic Centers collusion defrauding the patient / consumer as revealed through a sting operation titled Operation Jonk, aired by News Nation TV channel on July 21, 2014. Sir, on Monday, July 21, 2014, the Hindi TV channel News Nation aired a program titled Operation Jonk, which sought to expose the secret deals struck between some dishonest medical practitioners and the managements of pathological laboratories and diagnostic centers in the national capital of Delhi. The over 2-hour-long program appeared to employ classical sting operation techniques to rouse public consciousness on the allegedly unregulated state of affairs in an important segment of the medical economy. The ease with which some doctors are suggested as collecting 30 to 50% commissions on magnetic resonance imaging, that's MRI, CT scans, ultrasound, routine pathological tests, etc., was captured through surreptitiously filmed conversations. Some reputed diagnostic centers of Delhi, including its oldest standing one, were shown as involved in this nefarious racket. The Ministry of Health and Family Welfare does not accept a broad-brush depiction of the medical community as guilty of such malpractices. However, it is felt that some individuals who are indulging in such unethical conduct should be identified and disqualified from practicing the noble profession of the physician. The 3 most important revelations of the program are: the racket is suggestive of an all-pervasive, at least in the context of the national capital. Though doctors are not individually named, it should not be difficult to get to the facts, because the program has revealed that the commissions are paid through the issuance of monthly or weekly checks. Number 2, the racket is leading to unjustified profit margins. This is apparent from the rate of commissions paid. In quite a few parts of the sting operation, the staff of the diagnostic centers reveal that they pay referring doctors as much as 50% commission on expensive tests like MRI. This indicates that even after paying the huge rate of commission, these clinics report good profits. Number 3, a kind of cartelization has resulted in so far as this aspect of the medical economy of Delhi is concerned. All the private laboratories and diagnostic centers charge roughly the same amounts for pathological tests and clinical examinations. Patients have no option but to pay up the exorbitant fees. They are also subjected to unnecessary tests by the doctors who are guided by the lucre of commissions. This exacerbates
their physical and mental agony. The Ministry of Health and Family Welfare, Government of India accepts that the patient/consumer of the medical economy needs protection from such nefarious practices that have come to thrive under conditions created by lack of implementation of existing laws, rules, codes, and insufficient governmental oversight. The Secretary, Ministry of Health and Family Welfare, has been asked to conduct an impartial inquiry into the facts brought out by the TV program. News Nation channel has been requested to submit a DVD and a copy of the script to facilitate the inquiry. The President of the Medical Council of India, an autonomous body under the ministry, has been asked to summon an emergency meeting of its Ethics Committee and post the minutes of the said meeting on its website. I have also written to the President of MCI today morning pointing out that the practice of accepting commissions is in clear violation of MCI's Code of Ethics 2002 under Regulations on Professional Conduct, Etiquette and Ethics for Registered Medical Practitioners. Reiterating that the vast majority of medical practitioners of India maintain the highest standards of ethics and professionalism, the ministry feels it is time to check the retrogressive tendencies that have crept into sectors of the medical economy, thereby leading to the thriving of corrupt clusters and affecting the image of the community. For this, it is necessary to bring under some degree of oversight the trade practices employed by pathological laboratories / diagnostic centers. In addition, the ministry has decided to take a long-term view of the outstanding question of giving the consumer's interest the rightful focus in the medical economy. The laissez-faire spirit that dominates this business in India works to the disadvantage of the consumer and needs correction. It is acknowledged that extant civil laws governing medical negligence do not explicitly cover the aforementioned practices. The patient/consumer's right to transparent and rational prescriptions, including referral to justified clinical/diagnostic examinations, need to be codified in new legislations. Accordingly, the ministry is drawing up a panel of reputed medical practitioners and consumer law experts to suggest measures for introducing greater transparency and accountability in medical practices as a natural corollary of health for all. आमतौर पर हम देखते हैं कि बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनको लोग झेल रहे हैं, देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं और आम आदमी तकलीफ पा रहा है और ज़्यादातर न्यूज़ चैनल और अखबार के लोग भी इन पर पहल नहीं करते। वो सिर्फ पॉलिटिकल बयानबाजी को पूरा करके अपनी जो ड्यूटी है उसे पूरा समझते हैं। लेकिन जब न्यूज़ नेशन ने कल रात ऑपरेशन जॉक के सामने करके हिम्मत दिखाई, सामने दिखाया कि किस तरह से डॉक्टर्स और पैथोलॉजिकल लैब्स के बीच में एक बड़ा गठजोड़ चल रहा है जिससे मरीज जो है, आम आदमी जो है वो पिस रहा है, उसके बाद ही सियासी गलियारों में आवाजें तेज होने लगी। कांग्रेस के राशिद अल्वी साहब ने और एलजेपी के चिराग पासवान ने तो इस पर कड़ी कार्रवाई की मांग की, लेकिन ज्यादातर राजनीतिक दल इसे बहुत गंभीर मामला मान रहे थे। राजधानी दिल्ली में कुछ डॉक्टरों और डायग्नोस्टिक सेंटरों के बीच चल रहे कमीशन खोरी के गोरख धंधे का न्यूज नेशन ने जो पर्दाफाश किया, उससे न सिर्फ मेडिकल प्रोफेशन में हड़कंप मचा है, बल्कि सियासी दुनिया के लोग भी इसे एक गंभीर मसला बता रहे हैं। करीब करीब हर राजनीतिक पार्टी ने इस पर संजीदगी दिखाते हुए इस मसले को संसद में उठाए जाने और सरकार से कार्रवाई की मांग की है। आपने ये स्टिंग ऑपरेशन किया है, जो लोग जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए ताकि कम से कम दूसरे हॉस्पिटल्स को सबक मिले। ये सब चीजें हैं, इन चीजों पर कहीं ना कहीं अंकुश लगना चाहिए और सरकार कोई कड़ा कानून बनाए, हम सब उसका स्वागत करेंगे। मानता हूं और मैं सरकार से भी आग्रह करूंगा कि इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और जो कड़े कानून हो इसके प्रति वो बनाए जाने चाहिए। न्यूज नेशन के खुलासे, ऑपरेशन चोंक से मेडिकल प्रोफेशन में हड़कंप मचा हुआ है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से रिपोर्ट मांगी है।
डीएमसी ने स्वास्थ्य मंत्रालय से डायग्नोस्टिक सेंटरों पर कार्रवाई के लिए कड़े कानून की मांग की है। कमीशन के इस कारोबार में शामिल कई जमे जमाए डायग्नोस्टिक सेंटरों के काले कारनामों को न्यूज नेशन ने खुफिया कैमरे में कैद किया तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के भी कान खड़े हो गए। न्यूज नेशन के इस खुलासे के बाद आईएमए हरकत में आया और कमीशन खोरी के इस धंधे की कड़ी निंदा की। कट जो सिस्टम है वो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का डॉक्टर्स को नहीं लेना चाहिए और बिल्कुल लेते भी नहीं है वो, लेकिन जो लेते हैं वो बिल्कुल कानून का उल्लंघन करते हैं और उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। डॉक्टरों और पैथोलॉजिकल लैब के बीच के इस सांठगांठ के खुलासे के बाद देश की जनता ने भी न्यूज नेशन के इस खुलासे की तारीफ की है, जो कभी न कभी कमीशन खोरी के इस खेल का शिकार हुए हैं। पूर्णतः सहमत हूं इससे मैं कि जो न्यूज नेशन ने जो पहला कदम उठाया है डॉक्टर और जो पैथोलॉजी के बीच में जो चल रहा है कमीशन एजेंट का काम, ये बहुत ही सही दिखाया है। इससे आम लोगों की, आम जनता को पता चलेगा कि ये क्या चल क्या रहा है। किसी का सरदर्द होता है तो उसको एमआरआई टेस्ट लिख देते हैं ये लोग। वाली तो अंदर से दे देते हैं और महंगे वाली बाहर मेडिकल वाले। डॉक्टर इस तरीके से टेस्ट कर रहे हैं धड़ाधड़ कि हमारे पास से पैसे टेस्ट में ही चला जाता है। जो स्टिंग ये दिखाया है ये भी मतलब आज के इसमें बहुत सही चीज दिखाई है कि नॉर्मल बंदे के लिए ये बहुत ही मुश्किल है कि मतलब ऐसे महंगे चेकअप्स कराए जाए। जाहिर है आम से लेकर सियासी लोगों ने न्यूज नेशन के इस खुलासे को खूब सराहा है और इस पर सरकार से कड़ी कार्रवाई की अपील की है। अब सारी निगाहें सरकार पर टिकी हैं कि वो मरीजों के खून चूसने वाले डॉक्टरों और डायग्नोस्टिक सेंटरों के खिलाफ क्या कार्रवाई करती है। सैयद मोजिज इमाम और मधुरेंद्र कुमार के साथ टीम न्यूज नेशन। कमीशन के इस कारोबार को जब खुलासा किया न्यूज नेशन ने तो सियासी हड़कंप हो गया। ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो हर दिन किसी न किसी तरीके से मेडिकल प्रोफेशन में बीमारी को लेकर कमीशन के शिकार बनते ही हैं। तो बहुत सारे लोग डॉक्टर्स को आमतौर पर भगवान मानते हैं, लेकिन जब न्यूज नेशन के इस ऑपरेशन जॉक को देखा तो लोगों ने कहा, हे भगवान। डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया गया है, लेकिन धरती के कुछ भगवान प्राइवेट डायग्नोस्टिक सेंटरों के साथ मिलकर मरीजों का खून चूस रहे हैं। कमीशन की लालच में कुछ डॉक्टर मरीजों को गैर जरूरी जांच के लिए कैसे डायग्नोस्टिक सेंटरों में भेज रहे हैं, इस सच्चाई से पर्दा उठाने के लिए न्यूज नेशन की टीम ने की एक खास तहकीकात। हमें जानकारी मिली थी कि कुछ पैथोलॉजिकल लैब और डायग्नोस्टिक सेंटर खून और दूसरी तरह की जांच और एमआरआई लिखने के लिए डॉक्टरों को 20 से 30% तक किकबैक यानी कि कमीशन देते हैं। कमीशन के इसी घिनौने खेल को बेपर्दा करने के लिए हमारे अंडरकवर रिपोर्टर ने दिल्ली के कई पैथोलॉजिकल लैब और डायग्नोस्टिक सेंटर की सच्चाई जानने की कोशिश की। बेसिकली हमारे कुछ रिलेशन से कुछ बहुत सीनियर डॉक्टर के साथ हैं, पेशेंट हमारे पास आते हैं, जिनको कुछ कमर्शियल टर्म्स पे हम डील करते हैं, ठीक है, बिकॉज मार्केट में हमें रहना है तो हम प्रैक्टिस करते हैं। बट ये जैसे आपका क्या रहे, मतलब ये मंथली पेमेंट आप चाहते हो कि डेली पेशेंट चाहते हो? डेली हो जाए तो बेस्ट है। डेली कैश के हिसाब से नहीं करते तो मंथली हो जाए। किस हिसाब से रहेगा, वीकेंड्स में या फोर्टनाइटली या मंथली? क्योंकि हमारा भी चेक किस नाम से लगेगा आपको? नाम आपके नाम से जाएगा? नहीं, डॉक्टर साहब का नाम से आएगा चेक। तो क्या नाम है? डॉक्टर राम कुमार। ठीक है, इनका हॉस्पिटल है, मेडिकल सेंटर है इनका, 3 जगह है। क्या कट्स मिलते हैं आपको? नहीं, जो आपका जो रहता है ऐसा आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है? एक्सपेक्टेशन तो बताएंगे ना जब आप हमें बताएंगे कुछ, आप कितना दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं। बता दें आपको, हमारे पास में कुछ पेशेंट आते हैं या कुछ कहते हैं, फिर 2 चीज कर सकते हैं, या तो हम 20 से 30% आपके पेशेंट को डिस्काउंट दे दें। जी जी, ठीक है। या अगर आप लोग को उसमें मतलब नहीं है, पेशेंट को अगर पूरा चार्ज करना है तो पैसे जो है 20% 30% का जो होगा वो आपको 30% मंथली चेक आपको दे देंगे। इसके बाद हम दूसरे डायग्नोस्टिक सेंटर पहुंचे। यहां हमारे एक अंडरकवर रिपोर्टर ने मरीज बनकर अपनी जांच कराई, तो दूसरे अंडरकवर रिपोर्टर ने डॉक्टर का एजेंट बनकर कमीशन का चेक भी हासिल किया। इसके टेबल में बनना है डॉक्टर राम कुमार के नाम। डॉक्टर राम कुमार के नाम। आप ये हाल सिर्फ दिल्ली के डायग्नोस्टिक सेंटरों का नहीं है, देश के दूसरे राज्यों और शहरों में भी इस तरह के डायग्नोस्टिक सेंटरों और डॉक्टरों की भरमार है, जो अपने गठजोड़ के जरिए
मरीजों की गाढ़ी कमाई जोक की तरह चूस रहे हैं। टीम न्यूज नेशन। डॉक्टर्स और पैथोलॉजिकल लैब के बीच की ये जो रैकेट है, ये जो साजिश है, ये सिर्फ दिल्ली की कहानी नहीं है। पूरे देश भर में अलग अलग शहरों में इसी तरह का गठजोड़ चल रहा है और आम आदमी पिसता जा रहा है। और जब ऑपरेशन जॉक के रास्ते से हमने स्टिंग ऑपरेशन में इसका खुलासा किया तो पूरे देश भर में अलग अलग शहरों से लोग अपने आप निकल कर आ गए अपनी आप बीती सुनाने में, क्योंकि जख्म बहुत गहरे हैं और तकलीफ ऐसी है कि अपने आप रिसने लगी है। देखिए रिपोर्ट। डॉक्टर जिन्हें हम भगवान का दर्जा देते हैं, लेकिन चंद डॉक्टरों की करतूत ने सबको सख्ते में डाल दिया है। क्या दिल्ली, क्या मुंबई, क्या अहमदाबाद और क्या भोपाल, एक एक कर लोग हर जगह अस्पतालों में खुद के साथ हुई नाइंसाफियों की कहानी बयां कर रहे हैं। भोपाल का सरकारी अस्पताल जयप्रकाश चिकित्सालय, अपना इलाज कराने पहुंची एक मरीज ने जो कुछ बयां किया वो स्टिंग ऑपरेशन की कहानी से ज्यादा अलग नहीं था। यहाँ पे तो हर चीज की परेशानी है कि एक एक डेढ़ महीना हो जाता है, इलाज नहीं मिलता है और चेकअप लिख के दे देते, इसका चेकअप करवा लो, ये करवा लो, वो करवा लो, सब चीज़ों की जांच लिख देते हैं और इलाज नहीं मिलता है पूरी तरह से और मरीज बहुत परेशान होते हैं। मोदी के गृह राज्य गुजरात की कहानी भी ज्यादा अलग नहीं है। डॉक्टरों और टेस्ट लैब के बीच की सांठगांठ का खुलासा खुद वहां के लोग कर रहे हैं। लास्ट टाइम जो मेरे लड़के को पैर में लगा था और मैं हॉस्पिटल में ले गया था तो उन्होंने मुझे ऐसा बताया, और वो टाइम पे फीवर भी था, तो उन्होंने मुझे ऐसा बताया कि आप मणिनगर जो एरिया है हमारे यहाँ आटकेश्वर से दूर पड़ता है 2-3 किलोमीटर, उन्होंने वो कंडीशन में मेरा बच्चा रह भी नहीं पाता था और मेरे हाथ में भी नहीं रहता था, इतना रो रहा था, फिर भी मुझे 3 या 4 किलोमीटर दूर उसको ले जाना पड़ा। वहाँ से रिपोर्ट के लिए हमने उनसे बहुत रिक्वेस्ट की, फिर भी उन्होंने किया शाम को आके रिपोर्ट ले जाओ। और उस हिसाब से तो मेरे को लगता है कि जिस तरह से उन्होंने अरेंजमेंट किया है, जो अस्पताल है, लैब भी उसके पास में होना चाहिए। ये जाल पूरे देश भर में फैली हुई है, अहमदाबाद भी उससे अछूता नहीं है। यहाँ भी तबीब या डॉक्टर अपने पेशेंटों को अपनी मानी हुई, अपनी लाभकारी या अपने कमीशन वाली लेबोरेटरी में ही ये रिपोर्ट करने को भेजते हैं, क्योंकि उनका कमीशन उससे सब जुड़ा होता है। अस्पताल में फैली कुव्यवस्था की कहानी मुंबई में भी सामने आई। आप खुद ही सुन लीजिए जलगांव से आए मरीज के रिश्तेदार की जुबानी बदहाली की कहानी। सर यहाँ पे उनको बोला कि डॉक्टर साहब मेरी बच्ची का ऐसा है और आप एडमिट कर लो, तो वो बोले एडमिट करने की कोई ज़रूरत नहीं। मेरी शिकायत एक देवी थी लेडी डॉक्टर, उनको मैंने बताया मेरी फाइल वगैरह, उन्होंने वहाँ पे उनको बोला कि बोले ये तुम क्या कर रहे हो, बोले ये तुम चिट्ठी लिख दिया और बोले जाओ, क्या बोले आखिरी स्टेप पे डाल दिया बोले पेशेंट को, तो बोले फौरन इसको एडमिट करो। जब उन्होंने पटके में एडमिट किया सर, एडमिट करने के बाद में भी शाम को ट्रीटमेंट चालू किया उन्होंने। लोगों की आप बीती का सिलसिला यही नहीं थमा। न्यूज नेशन की टीम जहां जहां पहुंची, हर जगह अस्पतालों में फैले भ्रष्टाचार की तकरीबन एक सी कहानियां सुनने को मिली। हर कोई इस व्यवस्था से परेशान नजर आया। भोपाल से नीरज श्रीवास्तव और मुंबई से सुभाष शिर्के के साथ पूरब पटेल, न्यूज नेशन, अहमदाबाद। गांधीनगर हो, मुंबई हो, भोपाल हो, जलगांव हो, पटना हो, जयपुर हो, जबलपुर हो, हर जगह चेहरे भले ही अलग अलग हों लेकिन कहानी सब जगह एक थी। ऐसी एक कहानी को मेरी सहयोगी छवि चौधरी ने महसूस किया पीड़ित के साथ दिल्ली में। तकलीफ बहुत गहरी है। न्यूज नेशन के बड़े खुलासे में सामने आया है कि किस तरह से डॉक्टरों की कमीशन खोरी की वजह से मरीजों को झेलना पड़ता है, मरीजों को ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं। ऐसे ही एक मरीज हमारे साथ हैं, अब्दुल जी, जो ये सब कुछ झेल चुके हैं, उन्हीं से बात करते हैं। अब्दुल जी, आपसे मैं पूछूं तो क्या आपके साथ हुआ था, पहले आप ये हमें बताइए, किस तरह से आप जो टेस्ट आपने कराए उस सब में कितनी परेशानी आपको झेलनी पड़ी? मैं इससे पहले खुद बीमार था, हमें बहुत सारी परेशानियां थी, तो हम होली फैमिली में जाकर के मैंने डॉक्टर कोमू जी से दिखलाया। उन्होंने कहा कि आपके किडनी में टीबी है। उसके बाद उन्होंने हमसे 22,000 का टेस्ट करवाया। टेस्ट करवाने के बाद एक के बाद एक ये नहीं कीजिए, ये कराइए, फिर कराइए। जब 22,000 का टेस्ट हो गया तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमको तो शक है लेकिन टेस्ट में नहीं आता है, लिहाजा आप इसको रिपीट करें। हमको काफ़ी गुस्सा हुआ, उनसे नोक झोंक हुआ कि आप लोग कमीशन करते हैं, क्या पावर बना रखा है, आपने हमको बाहर से टेस्ट कराने नहीं दिया,
आपके ही लैब से सारा टेस्ट है, फिर आपको यकीन नहीं है। क्या उन्होंने बोला था कि आप इसी लैब से कराइए, बाहर से मत कराइए, ऐसा भी कुछ? हाँ, उन्होंने कहा कि यहीं का ही रिपोर्ट हमको मान्य है, बाहर से आप कराएंगे तो हमको मान्य नहीं है, जबकि यहाँ लाल लैब से भी हम चाह कराने के लिए, लेकिन वो माने नहीं, वहीं से कराया। उसके बाद जब 22,000 का टेस्ट होने के बाद हमारा कुछ हुआ नहीं, तो हमारा बच्चा है उसने कहा कि छोड़िए इसको, ये दुधारू गाय समझ रखा है, लिहाजा आप चलिए हमारे पास। तो वो हमको वैशाली ले गया। वैशाली से हमने कहा तो वो डॉक्टर कहा कि नहीं इसमें कुछ है तो नहीं, खामखा ये टेस्ट तो कराना ही नहीं था जो कराया गया है। लिहाजा उन्होंने 2 दवा दी, कहा कि आप ये खाएं, इसी से आपका ठीक हो जाएगा, और हो गया अभी। उसके बाद अभी हमारी वाइफ को तबीयत खराब हुई, सीतामढ़ी में 2 डॉक्टर से दिखाया। उन्होंने एक ने तो कहा कि हमको पैसा 3,000 रुपये ले लिए, 2 रोज के बाद तबीयत खराब हो गए, तो उसके कंपाउंडर ने कहा कि नहीं वो तो जा चुकी हैं विदेश। उसके बाद मैंने दूसरे अंजुल सिंह से दिखलाया, उन्होंने 4,000 का टेस्ट कराया। टेस्ट कराने के बाद उन्होंने कहा कि हमको कैंसर का शक है। पैर तो जमीन खिसक गया, हम सीधा है एम्स में दिखलाया। उन्होंने 15 दिन की दवा दी। सीतामढ़ी के टेस्ट को उन्होंने देखा, कहा कि ठीक है, 1-2 टेस्ट उन्होंने बताया, कहा कि आप यहाँ भी करा सकते हैं, लेकिन यहाँ लंबा टाइम लगेगा, बाहर से भी करा सकते हैं। हमने बाहर से करा लिया, लेकिन ज़्यादा परेशानी हुई। 2 रोज के बाद फिर हम होली फैमिली में गए। होली फैमिली में जब गए तो उन्होंने एक लेडीज डॉक्टर से हमने कंसल्ट किया, 600 रुपये उसका फीस दिया। उसने हमको 2800 रुपये का टेस्ट लिखा। उन्होंने कहा कि देखिए ऑपरेशन कर भी देंगे तो ये। क्या उन्होंने माने थे जो पहले आपने टेस्ट सब करा रखे थे, टेस्ट पर टेस्ट जो आपने बताया कि 2-3 डॉक्टरों को आपने दिखाया था, तो क्या जब बाद में आप उस हॉस्पिटल में गए तो उन्होंने वो टेस्ट माने या फिर कहा कि दोबारा आप टेस्ट करवाने पड़े? नहीं, हमने जो टेस्ट दिया तो उसको देखा ही नहीं। उसने कहा कि नहीं ये सब हटाइए, हम अपना टेस्ट कराएं। इस सारे ऑपरेशन के बाद और संसद में हंगामे और बयान के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन से मेरे सहयोगी मधुरेंद्र ने बात की। ऑपरेशन जोक और मेडिकल प्रोफेशन में व्याप्त जो कट सिस्टम है उस पर डॉक्टर हर्षवर्धन, जो कि देश के स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने पार्लियामेंट में बोला और उसके बाद बात करने के लिए खुद न्यूज नेशन पे हैं। डॉक्टर साहब, जिस पूरे ही मामले को आपने देखा और उस पर आपने संज्ञान लिया है, किस तरह से स्वास्थ्य मंत्रालय इस पर कदम उठाया? देखिए, पहली बात तो ये है मेरा मानना कि देश में मेजॉरिटी डॉक्टर्स पूरी ईमानदारी के साथ, पूरे निस्वार्थ भाव के साथ समाज की सेवा कर रहे हैं। किसी भी ऑपरेशन के माध्यम से पूरे मेडिकल प्रोफेशन को दागी आंकना या प्रचारित करना, इसको मैं उचित नहीं मानता। लेकिन जो भी मेडिकल प्रोफेशन के अंदर गलत लोग हैं, उनके संदर्भ में वो चाहे कमीशन का काम कर रहे हों, चाहे वो कोई भी अनएथिकल प्रैक्टिसेस कर रहे हों, चाहे वो किसी भी तरीके के दूसरे गलत काम कर रहे हों, उन सबके संदर्भ में मैंने पार्लियामेंट में भी स्टेटमेंट दी है कि उसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। मैंने मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की प्रेसिडेंट को लिखा है कि वो अपनी एथिक्स कमेटी की मीटिंग बुलाएं, उसके अंदर इस तरह के डॉक्टर्स, उनके व्यवहार के बारे में चिंता करें और उसके संदर्भ में अपना फैसला दें। और आने वाले समय के अंदर इस तरह की जो गलत एक्टिविटीज़ अगर कहीं पर भी चल रही हैं देश में, तो उनका गंभीर संज्ञान लेकर उनके बारे में कानून के तहत कोई ना कोई एक्शन होना आवश्यक है। आपने अपने सेक्रेटरी को भी कहा है कि पूरे मामले को खास तौर पर देखिए। मैंने यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी को भी कहा है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ साथ कि वो भी इसकी व्यक्तिगत तौर पर विषय की जांच करें और आपका सीडी वगैरह वो मंगवाकर उसकी जांच करेंगे। आईएमए और डीएमए का कहना है, दिल्ली मेडिकल काउंसिल का भी कहना है, एक ही सवाल कि कानून बहुत कड़े नहीं है, तो क्या कानून को बनाने के लिए? कानून बहुत है, कानून पर्याप्त कानून है। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के पास पर्याप्त कानून है। उनको उनके तहत जो है जो कानूनी कार्रवाई है वो शुरू करनी चाहिए। तो डॉक्टर हर्षवर्धन, जो कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनका कहना है कि पूरे मामले को संज्ञान में लिया गया है और कानून पर्याप्त है, कानूनी कार्रवाई को शुरू करने की जरूरत है। तो जाहिर सी बात है कि जिस तरह से संसद पटल पे स्वास्थ्य मंत्री ने इस तमाम मसले को एक तरह से संज्ञान में लेते हुए अपना बयान दिया है, उम्मीद इस बात की है कि स्वास्थ्य मंत्रालय कारगर कदम उठाएगा जिससे मेडिकल प्रोफेशन जो है वो बदनाम होने से बच सके। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित कुमार के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज नेशन, दिल्ली। शुक्रिया डॉक्टर हर्षवर्धन। विजय चौक पर आज इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी है।